Hello everyone, I am Renu Jatan, Assistant Professor in Botany from GCW Rohtak. In this video lecture, I will discuss photoperiodism. Now, what is photoperiodism? This term is made up of from two words, that is photos means light and periods, that is length of time. Now, first of all, what is photoperiod? Length of daily period of light to which plant is exposed is called photoperiod. And what is photoperiodism? It is a physiological phenomenon which discuss response of plants towards relative length of daily light and dark period. And specifically, photoperiodism is induction of flowering in response to relative length of daily light and dark period. Now, discovery of photoperiodism. The concept of photoperiodism was first studied by Garner and Allard while he was studying the behavior of flowering in a variety of tobacco. Now, photoperiodism in plants. Life cycle of a plant have two phases, that is vegetative phase and reproductive phase. After exposure to a specific photoperiod, vegetative phase changes to reproductive phase and a response, or we can say a flowering hormone is synthesized which is translocated or moves to the vegetative buds, and after these vegetative buds transform to floral buds. Now, what is the role of photoperiodism? Means in photoperiodism specifically we studies the effect on flowering and other effect it can have on bud dormancy, formation of vegetative traits, formation of tuber, bulb or leaf fall, or even it have effect on dark carbon fixation in cam plants. Now, classification of responses, or we can say classes of plants based on their photoperiodism behavior. Number one, short day plants. These plants flowers when exposed to day length shorter than or below a certain critical photoperiod, and this critical photoperiod varies from species to species. Means short day plants तभी flowering show करेंगे जब हम उनको एक critical photoperiod से कम लाइट देंगे. एग्जाम्पल है ज़ैंथियम, टोबैको, क्राइसेंथेम. नेक्स्ट है लॉन्ग डे प्लांट्स. These plants flowers when exposed to day length longer or above a certain critical photoperiod. Means critical photoperiod से अगर हम इसको ज्यादा लाइट देंगे तो ही ये फ्लावरिंग शो करेंगे. एग्जाम्पल है कैबेज, कॉलीफ्लावर. थर्ड कैटेगरी है डे न्यूट्रल प्लांट्स. इन प्लांट्स के ऊपर जो लेंथ है, ड्यूरेशन है लाइट की या डार्क पीरियड की, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता. दे शोज फ्लावरिंग ओनली आफ्टर अ वेजिटेटिव ग्रोथ. एग्जाम्पल कॉटन, सनफ्लावर. अदर कैटेगरीज आर लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट्स. टर्म से ही पता चल रहा है कि फॉर फ्लावरिंग दीज प्लांट्स शुड हैव long days and after that short days. Means for these plants long days should precede short days for flowering. Example agave. Next category is short day, long day plant. For these plants short days should precede long days for flowering. Example है coreopsis. Now this diagram is an example of short day plant. इस डायग्राम में हमें शो हो रहा है कि जो ये लाइन शो हो रही है दैट इज अ क्रिटिकल फोटो पीरियड. अभी हमने टर्म यूज की थी शॉर्ट डे में और लॉन्ग डे में क्रिटिकल फोटो पीरियड. जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है इट डिनोट्स द क्रिटिकल फोटो पीरियड. फर्स्ट डायग्राम में हमें शो हो रहा है अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट एक्सपोज हो रही है तो प्लांट क्या शो हो रहा है, वेजिटेटिव. मीन्स वहां पर फ्लावरिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही. बीच वाले डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि अगर उस क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम या बिलो लेवल की हम लाइट देते हैं तो फ्लावर फॉर्मेशन हो रही है. तो मीन्स ये किसका एग्जांपल हुआ, शॉर्ट डे प्लांट का. इस डायग्राम से क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से हम कम लाइट देते हैं
तो प्लांट फ्लावरिंग शो कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट। अब थर्ड डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है कि अगर जो ये ब्लैक पोर्शन है इट डिनोट्स द डार्क पीरियड एंड येलो पोर्शन डिनोट्स द लाइट पीरियड। अगर हम जो लाइट पीरियड है उसको बीच में हम क्या शो कर, बीच में हम लाइट डाल देते, मीन्स जो डार्क पीरियड है दैट इज इंटरप्टेड बाय लाइट, तो उस केस में जो प्लांट है वो वेजिटेटिव रहता है। थर्ड डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि फ्लावरिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही है, फ्लावर फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो इट मीन्स जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग एंड अनइंटरप्टेड नाइट्स, क्योंकि थर्ड डायग्राम में अगर हम नाइट पीरियड के बीच में इंटरप्ट कर देते हैं लाइट से तो वो वेजिटेटिव रहता है, फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शॉर्ट डे प्लांट टर्म है इट इज अ मिसनॉमर और मिसलीडिंग। एक्चुअली डे लेंथ की बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट पीरियड। दैट इज वाई short day plants are called long night plants. What is plant actually measuring? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो short day plant है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिटिकल नाइट पीरियड। जैसे ही हम नाइट पीरियड को इंटरप्ट करते हैं लाइट से तो फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है। दैट इज वाई short day plant is actually a long night plant. डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है, जो थ्री मेन कैटेगरीज थी शॉर्ट डे प्लांट की, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल, इन्हीं चीजों को हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम में। ये किसका एग्जांपल है, शॉर्ट डे प्लांट का। जो डार्क पीरियड है वो नाइट को शो कर रहा है और व्हाइट वाला वो लाइट को। मीन्स शॉर्ट डे प्लांट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुई, लॉन्ग नाइट्स, और जो लाइट पीरियड है वो क्या है कि सर्टन जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे कम होगा तो ये फ्लावरिंग शो करेंगे। जो लॉन्ग डे प्लांट हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट, क्योंकि जो लॉन्ग डे प्लांट है उनके अंदर अगर हम लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट करते हैं व्हाइट लाइट से तो उनके अंदर फ्लावरिंग शो होती है। तो इसका मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स को एक्चुअली क्या बोलना चाहिए हमें, शॉर्ट नाइट प्लांट्स। थर्ड डायग्राम में क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट्स, इनके ऊपर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ लाइट और जो डार्क पीरियड है उसका इफेक्ट नहीं होता, वो फ्लावरिंग शो करेंगे आफ्टर अ स्पेसिफिक वेजिटेटिव ग्रोथ। नाउ फोटोपीरियोडिक पिगमेंट, दैट इज phytochrome. Phytochrome, it is a pigment or we can say it is a bilioprotein pigment that perceive the light. अगर हम प्लांट्स को रेड लाइट देते हैं तो फ्लावरिंग क्या हो जाती है, इनहिबिट। रेड लाइट के बाद फार रेड देते हैं तो फिर से फ्लावरिंग प्रमोट हो जाती है। रेड लाइट, फार रेड लाइट, रेड लाइट, फ्लावरिंग स्टॉप। लास्ट में हमने क्या शो कर रखा है कि रेड लाइट फिर फार रेड लाइट, रेड लाइट फार रेड लाइट, यानी कि लास्ट में जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, प्रमोट्स। इस डायग्राम से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि अगर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है लाइट की वो डिसाइड करेगी कि प्लांट का बिहेवियर क्या होगा। अगर हम लास्ट में रेड लाइट दे रहे हैं प्लांट को तो फ्लावरिंग स्टॉप होती है, इनहिबिट होती है। अगर लास्ट में फार रेड दे रहे हैं तो क्या होती है, प्रमोट हो रही है। तो इस बिहेवियर से हमें पता चल रहा है कि प्लांट के अंदर कोई ऐसा पिगमेंट है जो इंटरकन्वर्टिबल है, जो रिवर्सिबल है, यानी कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से रेड लाइट और जो फार रेड लाइट है उसका जो बिहेवियर है प्लांट्स के अंदर वो चेंज हो जाता है, एंड दैट पिगमेंट इज फाइटोक्रोम। जो ये फाइटोक्रोम है इट इज अ ब्लू कलर्ड बिलियोप्रोटीन और interconvertible. It exists in two forms, that is phytochrome red form and phytochrome far red form. And the phytochrome red form of phytochrome absorb red light and it converts to far red form. And the far red form of phytochrome absorb far red light and converts to phytochrome red form even under dark period. Now flowering hormone and gibberellin. Gibberellin is a flower promoting hormone and it is effective only in long day plants.
जो जिबरलिन हार्मोन है, इट कैन एनहांस फ्लावर फॉर्मेशन ओनली इन लॉन्ग डे प्लांट. इट हैव नो इफेक्ट इन शॉर्ट डे प्लांट्स. नाउ फ्लावरिंग स्टिमुलस और फ्लोरिजन. जैसे ही हम प्लांट को एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड देंगे, सबसे पहले फ्लोरिजन से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन. एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय चाणक्यन. मींस अगर हम प्लांट को एक्सपोज करते हैं लाइट में और उस प्लांट के ऊपर लीव्स हैं, तो ही वो जो लाइट है उसको परसीव करेगा. तो मींस जो मेन साइट ऑफ परसेप्शन है फ्लावरिंग हार्मोन, जो फ्लोरिजन है, उसको सिंथेसाइज करने के लिए वो क्या है, लीव्स. इवन अगर प्लांट के ऊपर एक सिंगल लीफ प्रेजेंट है और उसको हम स्पेसिफिक फोटो पीरियड देते हैं, तो वो इंड्यूस हो जाता है. मीन्स वो फ्लावरिंग शो करेगा, वो सिंथेसाइज कर सकता है फ्लोरिजन हार्मोन को. इवन 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ अ लीफ इज एनफ टू परसीव द इफेक्ट ऑफ लाइट. तो मीन्स जो साइट है परसेप्शन की वो क्या हुई, लीव्स. कुछ एक्सेप्शंस हैं जो लीफलेस प्लांट है, जैसे कस्क्यूटा है जिसके अंदर इंटरनोड्स भी लाइट के इफेक्ट को परसीव कर सकते हैं. तो मीन्स जो मेन साइट है परसेप्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म टू इंड्यूस फ्लोरिजन फॉर्मेशन इज लीव्स. नाउ द फ्लावरिंग स्टिमुलस दैट इज फ्लोरिजन. अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम प्लांट को एक स्पेसिफिक फोटो पीरियड देंगे, जो लीव्स हैं वो उस लाइट को परसीव करेंगे और फिर एक स्टिमुलस सिंथेसाइज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरिजन. फ्लोरिजन क्या है, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, क्योंकि लाइट को रिसीव कौन कर रहा है, लीव्स. और जो फ्लावर फॉर्मेशन वो हो रही है कहां पर, एक डिफरेंट साइट्स पे. यानी कि इसका मतलब लीव्स से जहां पर फ्लोरल बड बन रहे हैं वहां कोई सब्सटेंस मूव कर रहा है जो फ्लावरिंग को इनिशिएट कर रहा है. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लोरिजन एंड इट इज ए हाइपोथेटिकल हार्मोन. हम इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज तक भी हम इसको प्लांट से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए और ना ही इसको आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज कर पाए. नाउ कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग. इस डायग्राम में हमने क्या शो कर रखा है कि चेंज इन डे लेंथ. मींस जो डे लेंथ का एक्सपोजर है प्लांट्स को, अगर हम उसको चेंज करते हैं, जो लेंथ है, ड्यूरेशन है लाइट पीरियड की, अगर उसको हम वेरी करते हैं तो रिस्पॉन्स जो प्लांट्स का है वो चेंज हो जाता है. जैसे ही उसको अगर वो शॉर्ट डे प्लांट है, अगर हमने उसको शॉर्ट डे दिया तो उसकी जो वेजिटेटिव फेज है वो किसमें चेंज हो जाएगी, फ्लोरल फेज में. और वो कैसे चेंज हो जाती है, ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ अ हार्मोन दैट इज फ्लोरिजन हार्मोन. एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्लोरिजन हार्मोन, floral buds are activated and flower formation occur. Thank you.